done without any cost. اور اس میں ان کو یہ ہیلپ ہوتی ہے کہ جس ایریا سے وہ پیشنٹ آیا ہوتا ہے وہ ایریا پھر وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ ویکسینیشن ہوتی ہے جس کو موپ آؤٹ کہتے ہیں. صحیح. اچھا میم ایک کال ہے ہمارے پاس, اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہا ہے؟ میں صابر بات کر رہا ہوں کراچی گلشن اقبال سے. جی صابر, کیسے ہیں آپ؟ اچھا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے اگر میرے گھر میں کوئی آیا ہے اور میں نے زبردستی کی اس کو منع کر دیا تو یہ رپورٹ ہوتا ہے کہ فلاں فلاں گھر نے منع کر دیا ہے تاکہ اس کو جو ہے کاؤنسلنگ کر سکے اور ان کو سمجھا سکے. ٹھیک ہے, بہت ہی اچھا کوشچن کیا آپ نے صابر صاحب, ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار یور کال. یہاں میم پہلے آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا پھر صابر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. جی میں بس یہی جیسے کوپریشن میں تھا کہ نہ صرف یہ کہ ساری پاپولیشن کو یہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے کہ پولیو کے ڈراپس دینے چاہیے, ڈاکٹرز کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے جو بھی جنرل پریکٹیشنرز ہیں پرائیویٹ کلینکس میں کر رہے ہیں یا دور دراز علاقوں میں کر رہے ہیں. ٹیچنگ ہاسپٹلس وغیرہ میں تو بیکاز ہم بھی ایمفیسائز کرتے ہیں اپنے جونیئرس کو کہ فوراً رپورٹ کرو, مگر ایوری بڈی شوڈ رپورٹ کہ اگر کوئی کیس آیا تاکہ امیونائزیشن اور فوکسڈ ہو جائے. صحیح. اچھا میم اب یہ بتائیے کہ اگر کسی گھر سے اس طرح کا ریجیکشن آتا ہے تو کیا وہاں جو ریپرزینٹیٹیوس ہوتے ہیں وہ پھر رپورٹ کرتے ہیں, پھر اس گھر کی جا کے کاؤنسلنگ ہوتی ہے؟ جی ہمارے پولیو کیمپینز میں میپنگ ہوتی ہے. پہلے میپنگ کا مطلب یہ کہ پہلے کیمپین شروع ہونے سے پہلے لوگ جا کر اور مارک کرتے ہیں گھروں پر کہ اس گھر میں بچے ہیں, ٹھیک ہے, 5 سال سے کم عمر کے. پھر جب کیمپین شروع ہوتی ہے تو ان گھروں میں جا کر قطرے دیے جاتے ہیں. تو سارے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس گھر میں جا کے پہلے پوچھتے ہیں, اگر کوئی نہ بتائے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جو گھروں میں ہوتے ہیں بچے ان کے اوپر مارک کیا جاتا ہے اور ان کے پاس ایک پورا میپ ہوتا ہے کہ یہاں یہاں آپ کو جانا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اگر گئے اور کہیں سے والدین نے کہا کہ جی بچہ اسکول گیا ہے یا بچہ سو رہا ہے یا ہم نہیں لگوانا چاہتے یا واٹ ایور, جس وجہ سے وہ نہ دیں, تو وہ اس ایڈریس پر لکھ دیتے ہیں کہ یہاں پولیو قطرے نہیں دیے گئے. پھر 3 دن جب یہ مہم ختم ہوتی ہے تو جہاں جہاں قطرے نہیں دیے گئے وہاں پھر ایک ٹیم دوبارہ جاتی ہے 4تھے دن پر, اور وہاں پھر کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ پلیز دلوا دیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک کتنے لوگ رسپونڈ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ رسپونڈ کرتے ہیں اس کا میرے پاس فگر نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کئی حد تک لوگوں کو اگر سمجھایا جائے تو وہ سمجھ جاتے ہیں اور دلوا دیتے ہیں. صرف ایسی جگہ جہاں ہمارے لوگوں کا جانا ہی دشوار ہو تو وہاں پہ پرابلم آتا ہے, جیسے کہ فاٹا وغیرہ میں پرابلم آ رہا ہے, جیسے کہ کچھ علاقے کراچی کے ہیں جہاں ایتھنک ڈیوائڈ جسے کہتے ہیں وہاں ہے, وہاں پرابلم آ رہا ہے. اور ایک چیز میں لوگوں کی معلومات کی خاطر بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پولیو ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے وہ اس کو لیبارٹری میں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کون سی قسم کا پولیو ہے, کیونکہ 3 قسم کے وائرس ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. پاکستان میں زیادہ کر 132 کیسز یہ سال ہو چکے ہیں, جو سب میں زیادہ نمبر پچھلے سال سے بہت زیادہ ہے. اس میں سے 2 کے علاوہ 130 جو ہیں وہ پولیو ٹائپ 1 کے ہوئے ہیں. ٹائپ 1 کے ہوئے. اچھا میم ٹائپ سے بات کرتے ہیں, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, سینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم, کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں ڈاکٹر انور؟ بہت شکریہ. آج ٹائم پر آئے آپ؟ ہاں جی آج ٹائم پر آ گئے آپ. جی بہت شکریہ. اچھا دیکھیے جی, آج آپ کا فوکس جو ہے وہ پولیو ہے, اور میں صرف پولیو کو فوکس کرنا چاہوں گا کہ since 4 decades we are having the polio virus in Pakistan, and as far as the government and the UNICEF and the other NGOs are making efforts to eradicate completely this virus from the country. ہمارے ہاں ابھی تک یہ پاکستان اس وقت دوسرے نمبر پہ ہے, اور 7 دنیا کے کنٹریز ایسے ہیں جہاں پر پولیو ابھی بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. اب دیکھیے 4 آپ نے کتنی کنٹریز کہیں؟ جی کتنی کنٹریز؟ 7 دنیا کی. 7 ہمارے ڈیٹا میں تو 4 ہیں. نہیں 7 ہے ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے, اس میں پاکستان کا دوسرا نمبر ہے جہاں پہ سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں. ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ پاکستان کے اندر کیا وجہ ہے کہ ہم اب تک پولیو کو ختم نہیں کر سکے, اس میں کئی وجوہات ہیں.
देखिए बात ये है कि हमें अब फोकस जो है वो डिफरेंट तरीके से करना होगा और एक प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट चाक आउट करना होगा। वो इलाके जो कि रिहायशी हैं और रेजिडेंशियल जो बेंगलोर के हैं वहाँ लोगों में बड़ी अवेयरनेस है, वो तो फौरन जाके इम्यूनाइज भी करवाते हैं और कोई बात होती है तो केस रिपोर्ट भी हो जाता है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स आ रही है कराची तक के अंदर कि वो इलाके जो बिल्कुल ही रिमोट एरियाज जिनको आप कहें या बिल्कुल छोटी छोटी सी गलियां हैं, वहाँ पे मैं कहता हूँ कि वहाँ पहुँचना मुश्किल है और वहाँ पर एक एक घर में 10-10, 12-12 बच्चे होते हैं और केसेस ज्यादातर अगर आप देखें स्टैटिक्स निकाल के तो वहाँ से रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये तो मैं कराची की बात कर रहा हूँ। फिर आप चले जाइए रिमोट एरियाज के अंदर और हमारे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे और ज्यादा केसेस जो हैं वो कभी कभी वहाँ से आ रहे हैं रिपोर्ट हो। इसके लिए जरूरी ये है कि अब आपको डिफरेंट फोकस करना होगा, डिफरेंट प्रोग्राम्स के तहत चलना होगा ताकि इसकी कंप्लीट एरिडिकेशन हो सके। क्योंकि देखिए अगर ये नंबर ऑफ केसेस इसी तरह बढ़ते रहे तो फिर ये एपिडेमिक के अंदर आ सकता है जैसा कि पहले हो चुका है। तो इसके लिए तो जरूरी ये है कि हम इसके लिए एक नए प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ें। किस तरह का प्रोग्राम डॉक्टर अनवर? जी मैं देखिए एक बात बता दूं, देखिए उन इलाकों के अंदर जो हमारे कराची जैसा इलाका है जहाँ पे बहुत अच्छे बैंगलोर या एक ऐसी भी बैंगलोर है हर तरीके की कैटेगरी है, यानी 80 यार्ड से लेके और 1000 स्क्वायर यार्ड तक के, वहाँ पर हर शख्स को पता है कि अगर उसके यहाँ ऑफ स्प्रिंग आता है कि उसको इम्यूनाइज कराना है और उसके पास सारी चीजें अवेलेबल होती हैं और डे 1 से क्योंकि ज्यादातर डिलीवरीज जो है वो कंडक्ट होती हैं हॉस्पिटल्स के लेवल के ऊपर, तो वहाँ पे सारा कुछ हो जाता है। लेकिन वो जहाँ पे घर पे डिलीवरीज कंडक्ट हो रही हैं कराची के अंदर या फिर वो रूरल एरिया जहाँ पे बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है इन बातों की कि वहाँ पे वो 8 बच्चे भी हैं तो पता चलेगा उनके यहाँ सिर्फ 2 बच्चों को इम्यूनाइजेशन हुई, 6 बगैर इम्यूनाइजेशन के हैं। और जब इस तरह केसेस रिपोर्ट होंगे तो इस तरह प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हम अगर इसको आगे बढ़ें तो एक नए प्रोग्राम के तहत करें ताकि पोलियो खत्म हो जाए पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। मैम हम कहाँ थे? आप जी नहीं हम ये बता रहे थे कि किस किस्म के पोलियो वायरस होते हैं और टाइप 1 मैंने कहा कि 130 केसेस 132 में से 130 टाइप 1 के हुए हैं। खतरनाक वाला खतरनाक की बात नहीं है, कुछ होता है खतरनाक की बात नहीं है। बात यह है कि टाइप 2 बहुत आसानी से हम इम्यूनाइजेशन के जरिए ख़त्म कर सकते हैं। हो गया है। टाइप 3 रह गया, टाइप 1 टाइप 3 रह गया। अब जो टाइप 1 है वो ज़्यादा कर यहाँ हमारे इलाकों में टाइप 1 है, तो उसके ख़िलाफ़ फिर गवर्नमेंट ने ये किया था कि बीच बीच में NID जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज़ के बीच बीच में सब NIDs होते हैं उन इलाकों में जहाँ के पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ठीक है। तो उनमें फिर उन्होंने एक दूसरे किस्म का वैक्सीन यूज़ किया था जिसमें टाइप 1 के ख़िलाफ़ ज़्यादा इफ़ेक्ट हो। तो इसके ज़रिए बाईवेलेंट ट्राईवेलेंट वैक्सीन के ज़रिए गवर्नमेंट ने प्लान किया है। गवर्नमेंट क्या मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एडवाइज़ किया गवर्नमेंट को कि वो इस तरीके से वैक्सीन दें। अब इसका ख़ात्मा कैसे किया जाए, उसके ख़ात्मे की मैं आपको जो तारीख़ बता रही थी वो ये है कि WHO में एक लेबॉर्ट्री है जहाँ ये एनालिसिस होती है। उन्होंने एक वायरस का समझो जीन लिया, मतलब कि कौन सी फैमिली से आ रहा है ये, अच्छा उसको ट्रेस कर सकते हैं। जैसे हम अपने ख़ानदान को ट्रेस कर सकते हैं वैसे हम वायरस को भी ट्रेस कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि 5 साल तक उस वायरस की फैमिली को फॉलो किया गया कि ये वायरस कहाँ जाता है। और वो वायरस शुरू कराची से हुआ, अफ़गानिस्तान तक गया, बलूचिस्तान गया, फिर कराची आया। तो हमारी गलत फहमी है जब कुछ लोग कहते हैं कि जी अफ़गानिस्तान में चूँकि गड़बड़ है वहाँ से हमारे यहाँ आ रहा है, ये गलत फहमी है हमारी। हमारे यहाँ से जा रहा है और कराची इज़ अ हब जहाँ से ये पोलियो वायरस हर जगह फैल रहा है, क्योंकि लोग कराची में आते हैं। कराची सब में बड़ा शहर है, वहाँ हर मतलब पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं काम के वजह से जो भी। अब यहाँ से फिर फैमिलीज़ जाती हैं, अपने गाँव में जाती हैं, अपने इलाकों में जाती हैं और यहाँ से वो वायरस ले जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना कि कराची ना तो सिर्फ हमारा सब में बड़ा शहर है, लेकिन कराची से अगर पोलियो गया तो ये एक शुरुआत होगी कि पूरे पाकिस्तान से गया। सही। अच्छा हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग यूसुफ साहब। कैसी हैं बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बड़ा ही अच्छा मौजू चल रहा है आज। थैंक यू। और बड़ी मालूमात लोगों को मिल रही है, आम आदमी भी इसके बारे में
समझ रहा है आपका प्रोग्राम देख के। थैंक यू। 2-3 बातें मेरे भी जहन में है। जी जी पूछिए। एक तो ये है कि ये मर्ज जो है अब दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद है। हमने बताया ना 4 ममालिक में बहुत ज्यादा मौजूद है अभी भी। अच्छा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया एंड इंडिया। अच्छा, और कहीं नहीं है और अब हर जगह से इरेडिकेट हो चुका है। अच्छा, दूसरी चीज ये पूछनी है कि ये जैसे बुखार होता है बच्चों को तो शुरू में स्नीजिंग, नज़ला वगैरह ये वो, तो उस वक्त ऐसा कोई टेस्ट है पॉसिबल कि पता चल जाए इसको पोलियो का वायरस अटैक कर चुका है और उसकी कोई रोकथाम और उस वक्त कोई प्रिवेंशन, बजाय इसके कि वो माजूर हो जाए उससे पहले ही मालूम हो जाए और कोई इसका इलाज हो जाए, ऐसा कोई होता है? और दूसरा ये बड़ी लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई जा रही है कि ये जो टीके जो है ये कोई और मकासद के लिए लगाए जा रहे हैं जो हमारे मुल्क में इस तरह है, तो इस पे भी जरा रोशनी डालें। ठीक है जी। ताकि लोगों को, आम आदमी को मालूम हो सके और सही पोजीशन पता चल सके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। यू साहब, हम इनके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं मैम एक ब्रेक के बाद, ठीक है? वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा।